very good afternoon, sir. Myself, Abhishek Chaudhary, welcomes you on our College Dunia platform for initiative Thoughts on Education. So, my very first question is: you have held key positions at education institutes throughout your professional career. So, what are the key factors that keep you connected with the education sector? Okay, thank you, Mr. Vijay. फर्स्ट थिंग्स आई मीन जो पहला चीज़ है, हियर वी कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स. हमेशा नई चीज़ों को हम लोग समझते रहते हैं, जानते रहते हैं. और दूसरा चीज़ है एक्सचेंज ऑफ नॉलेज. जो आप जानते हैं, समझते हैं, वो दूसरों से शेयर भी करते हैं. तो ये चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इस फील्ड में रहने से. आप भी देखेंगे तो 90% रिसर्च जो है वो आपका एजुकेशन फील्ड से ही जाता है. Yes. So of course new things we keep learning and we excelling. So that is affecting mostly. That's great, sir. So moving to the next question. So the education system in India and other foreign countries are structured very differently. So in your experience, what can an inbound student get from studying here in your college? Yeah, correct. Thank you, sir. Here actually students coming from the different categories. Different caste also. So here benefit is like that we can accommodate all kind of the students whether are coming from the different caste of category like that and different section also. Section in terms of especially the economy. कोई poor है, कोई जो है middle level के हैं, कोई higher level के हैं. तो अपना जो सिस्टम है वो हर एक तरह के स्टूडेंट को एकोमोडेट करते हैं irrespective of their race, caste and the economy. बहुत बढ़िया सर. So how does the curriculum of your university ensure the best practice of industry? Okay. Here we keep revising our syllabus and the course contents that is meeting the need of the industry. इंडस्ट्री का जो नीड है उसके अनुसार हम लोग अपना कुरिकुलम को रिवाइज करते रहते हैं ताकि उनके ज़रूरत के बच्चे को हम यहाँ से उनको दे पाएँ. तो सर ये सारे कोर्सेज वगैरह सारे कोर्स वी कीप रिवाइजिंग आफ्टर 1 semester or 2 semester or 1 year. Mostly after 1 year we keep revising that and we are changing the contents of the course just to meet the current and the modern needs, trending courses and all. current जो ट्रेंड है या नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम कोर्स को रिवाइज करते हैं ताकि बच्चे हमेशा वो करंट के हिसाब से. हाँ जी हाँ. That's great, sir. So the next question: any insight into how your university could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? Okay. So here we are learning. Here we are providing the courses different kind. Especially the student they are too much far, जो बहुत दूर में रहते हैं और जो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं. और अगर हम बात करते हैं उस तरह के बच्चे को जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पुअर है, उनके लिए हम वोकेशनल कोर्सेज भी देते हैं. जो स्पेशली कोर्सेज है आपका अर्न एंड लर्न. आप जॉब भी करें और पढ़ाई करें. उनको कुछ ऐसा ट्रेनिंग पहले देते हैं, उसके बाद वो जॉब कर सकते हैं और वो जॉब करते हुए और कंटिन्यूअस वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं. ये थिंग्स हुआ. सो फॉर रिमोट स्टूडेंट वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड फॉर द वीकर स्टूडेंट, वीकर आई मीन द वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन लाइक इकोनॉमी, सो उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज है और टोटली पैटर्न पे है अर्न एंड लर्न. It's nice. So तो फिर कोई any scholarship opportunities? Yeah, we having a scholarship opportunity also. Some scholarship is provided by the government of Jharkhand, and some of the scholarship our university also providing. And again we are conducting the many exams, so for the student securing the more marks or top marks, so we are waiving the fee. उनके लिए हम लोग फी को सब कुछ एक्सटेंड तक माफ भी करते हैं. Okay, the student is कोई पुअर स्टूडेंट है तो उनके भी एप्लीकेशन अगर देते हैं तो उनकी भी हम लोग सुनवाई करके उनको भी जहाँ तक होती है यूनिवर्सिटी उनको भी कोऑपरेट करते हैं, इकोनॉमिक उनको भी हेल्प करते हैं. जो पिछड़े हैं या फिर जो ऐसे हैं तो उनको दोनों तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा यूनिवर्सिटी अपने कोर्स अगर वो बच्चे पढ़ने में और भी अच्छे हाँ तो उनके फिर हाँ मार्क्स के बेसिस पे भी अगर टॉप मोस्ट हैं तो उनको कुछ सब्सिडाइज करते हैं तो और भी यूनिवर्सिटी हाँ मोरल टैलेंट को बहुत अच्छा टैलेंट को भी सपोर्ट. Okay, that's great, sir. So, sir, moving to the next question. What do you think your roles and responsibilities to the college and the students are?
और मेरा जो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट को दे सकते हैं। उसके लिए हम सबों से स्टूडेंट्स को भी पूछते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी यू आर गेटिंग, और आप किस तरह से चाहते हैं, आपको कैसे कन्वीनियंट लगेगा। फिर हम टीचर सब से भी कंसल्ट करते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी यू आर गेटिंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और इन टर्म्स ऑफ पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ द कोर्स, इन टर्म्स ऑफ कोर्स डिलीवरी। और टाइम टू टाइम हम लोग टीचरों को ट्रेनिंग भी कराते हैं, वेबिनार भी कराते हैं, सेमिनार भी कराते हैं, ताकि वो जो है न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स जो टीचिंग का है उनको एक्सरसाइज करके अच्छे से नॉलेज वो स्टूडेंट को ट्रांसफर कर पाएँ। सो ये मेरा दैट्स ग्रेट। तो सर मुझे लगता है कि पैंडेमिक में तो काफ़ी अच्छा आप लोगों ने फिर ऑपरेट किया होगा, जिस तरह से ट्रेंड है, ऑनलाइन क्लासेस एंड ये सारी चीज़ें। हाँ, इसको हम लोग उसको भी हम लोग ट्रैक करते रहते हैं और उनमें भी क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं फॉर गिविंग द बेटर डिलीवरी ऑफ द नॉलेज, उस चीज़ को भी हम लोग अप टू डेट करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट सर। So my next question is, how do you tend to establish a healthy relation and environment in your college? Okay. So to establish the healthy relation, first of all, we are doing the cultural activity and we are also convincing the students to participate in that. And in addition of that, for the staffs, we are also keep organizing the tours and picnic like that way. But this Corona period, we have stopped that due to this all the things. But otherwise, we have part of our academic activities, tour for the student also, picnic for a student also, staffs also. और इसके अलावा हम लोग वी आर गेटिंग द वॉइस ऑफ ऑल। अगर स्टूडेंट भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं या कंप्लेन है या अनकम्फर्ट फील करते हैं, तो उनको हम लोग सुनते हैं, स्टाफ्स का भी सुनते हैं, उनका रिव्यूज करते हैं। अलग अलग कमेटी है, उसमें स्टूडेंट भी मेंबर हैं, वो भी डिसीजन मेकिंग के पार्ट होते हैं। तो ऑल द वे वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट रिलेशन एंड हेल्दी रिलेशनशिप फॉर द Student can enjoy. Yeah. Okay, that's it, sir. So my last question. So what are some plans that you are currently designing for ISEC University, the national affairs and our students? Any plans? So we are again exercising to provide that best quality of education to the students. और उस जब बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो केवल ये बुकिश इंफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं। सोसाइटी कंसर्न हो, इंडस्ट्री कंसर्न हो या और किसी चीज़ का कंसर्न हो, हम लोग उसको रिवाइजिंग करते रहते हैं। या मॉडर्न नॉलेज की बात हो या लेटेस्ट नॉलेज की बात हो या हायर नॉलेज की बात हो। So we are including and exercising and revising all those so that we can provide the quality of education to our students. So thank you. Okay, that's very good, great, sir. Nice talking to you. Thank you, sir. Thank you.